जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड इवनिंग टुडे। मैं हूं आपका दोस्त दानिश महाजन। हर बार की तरह बदलते दौर में एक हफ्ते के गैप के बाद मुझे मालूम है कि आप सभी इंतजार कर रहे होंगे एक नए टॉपिक का, हमारे पैनलिस्ट का और एक गर्मा गर्म बहस का। उससे पहले कि आज की डिबेट को हम शुरू करें, उससे पहले आज की हेडलाइन। राहुल गांधी के रोड शो में बजी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। नरेंद्र मोदी मिले प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह से और भेंट की संघ के नेताओं के साथ। चुनावों के घमासान में प्राइम मिनिस्टर का विदाई पत्र। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने हराया दिल्ली डेयरडेविल को सिर्फ 5 ओवर में 43 रन। बारिश के कारण 5 ओवर का टोटल। और एक सनसनी केस खुलासा, ऐश की जिंदगी में तूफान टेस्ट सुर्खियों में। श्रीलंकन मूल के निरंजन प्रिय ने कहा कि मेरे साथ रिलेशनशिप में जब हुई शादी तय अभिषेक बच्चन से। और नाइजीरिया में 200 लड़कियों को अरेस्ट करने के मामले में मिशेल ओबामा ने जताया काफी रोष। तो ये थी आज की हेडलाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड डिबेट such a very important issue, not for us, for everyone, because today we are going to talk about patriotism. It's foremost necessary for each and everyone. So the topic of today's debate is, क्या भारतीय यूथ तो हम युवा वर्ग है उसमें देशभक्ति की भावना कम हो रही है या ज्यादा? तो इस टॉपिक पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे पैनलिस्ट बिल्कुल तैयार हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस द पैनल। Today I have got media spokesperson of Radio Udaan, Mr. Bala Nagendran, who is saying the patriotism is increasing rapidly in the youth. I have got the friend of Bala who is speaking the same tone, Mr. Viral Trivedi, one of our permanent panelists for the debate. He's a teacher, is from Gujarat. Mohammad Sayyid Raja, of course from Mumbai. He is also one of the permanent panelist and always ready to help us out whenever there is a trouble. First time joining us, Chandrasekhar from Bangalore, who is eagerly waiting for the opportunity to debate with the other panelists. Mr. Raja and Chandrasekhar are saying that patriotism is reducing in youth. So I extend a very warm welcome to all of you. Before we start the debate, thank you so much. Before we start the debate, I just want to give a message to the listeners and the participants who used to join me in the debate. I request you all kindly, if you want to join me in the debate, kindly be serious, because don't create a fun, don't mock at us. It's a question of the Radio Udaan and of course of the program as well. Today Mr. Naveen from the Haryana, he was ready to join us in the debate. We called him 20 times, but even though after 10 times picking, 10 times cutting, at 9:55 he's saying, I can't come, I don't want to come. That the stupid, rubbish, idioticism will not work here. I request every participant, you join us, whether don't join us, it's not a compulsion, but don't make a mockery on Radio Udaan. So now let's discuss the topic today. The patriotism is increasing or decreasing. Bala Nagendran, let me start with you, and I want to know what is the definition of patriotism. India is struggling in everywhere. People are just running after money, and you are saying the patriotism is increasing. Where, Mr. Nagendran? First and foremost, good evening to moderator, good evening to my respected panelists, and good evening to listeners with whom I am interacting after gap of 2 weeks. Today we are talking on the important, significant day in Indian history, May 10th, followed by May 11th, where the patriotism has begun. Patriotism has took its origin. So let me define patriotism by this, I quote. Patriotism is a process of functional thinking that, apart from the creeds, caste, nationalism, religionism, apart from that, there is a belief in the soil. That is what patriotism.
as you said, people are running after money. That is also because of patriotism. If you don't have money, the country will go to deficit. I'm going to talk about that later. Surely my other panelists who are going to oppose this will come with many points. But patriotism is a process, a functional thinking of my soil, my nation, my country, my people. This is what my opening comment. Mr. Chandrasekhar, your opening comments. Will you please tell us how would you define that patriotism is reducing in youth when the youth is now they are in the great spirit. Everywhere people are fighting against India. They want to make India prosper in every pattern. Good evening, sir. Good evening, everybody. Those who are listening, Radio Udaan. I am Chandrasekhar, first time participating in this debate program. First, I would like to say, पेट्रियटिज्म और देश अभिमान वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमारा देश में पहले 100 years बैक एक गोल था, वो मोटिवेशन टू फ्री इंडिया फ्रॉम फॉरेनर ब्रिटिशर. अभी कोई गोल नहीं है, इसलिए कोई गोल नहीं तो पेट्रियटिज्म कैसा बढ़ना चाहता. खाली फाइनेंस इकोनॉमिक के लिए बढ़ने तो वो पेट्रियटिज्म वो देशाभिमान नहीं है. हमारा देश में क्या वो जाति का धर्म का ये अभिमान बढ़ रहा है इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग देशाभिमान के अलावा कोई क्या 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 अभिमान वो सभी अनवांटेड अभिमान वो अनवांटेड ये बढ़ा रहा है. इसलिए हमारे देश का अभिवृद्धि नहीं होना चाहिए. यूथ में हमारा देश में हेलो प्लीज कंटिन्यू. हाँ, हमारा देश में युवा शक्ति बहुत अच्छा तरफ से ये होना चाहिए. क्या हमारा देश में घर में हर एक घर में देशाभिमान का टॉनिक देना है. हमारे देश में प्रति हर एक घर में तो जाति का अभिमान का ये टॉनिक दे रहा है. इसलिए हमारा देश एकता में नहीं जा रहे हैं. इसलिए हमारा देश का अभिवृद्धि नहीं होता आ रहा है. We got your point. जी चंद्रशेखर जी, थैंक यू सो मच फॉर द ओपनिंग कमेंट्स. मैंने आपके पॉइंट ले लिए हैं. विरल सर, मैं आपके पॉइंट्स पर आऊंगा, उससे पहले हम सुनते हैं विरल सर के जो ओपनिंग कमेंट्स. विरल सर, कहाँ हमारा देश के यूथ में ये बोल रहे हैं कि हमारे जो देश में जो यूथ है वो जो देशभक्ति की भावना नहीं बढ़ रही है, बल्कि जातिवाद बढ़ रहा है. धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जातिवाद के लिए लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन देशभक्ति के लिए कोई भी लड़ नहीं रहा. तो आपके ओपनिंग कमेंट्स भी. Good evening to one and all, the listeners, the moderator and the fellow panelists. सबसे पहली बात है कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि यूथ में देशभक्ति की भावना बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है या रिड्यूस हो रही है. प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती. पिछले 2 सालों में हमने 3 मूवमेंट ऐसी देखी है इस देश में, जब देश की युवा शक्ति ने रोड पे उतर के अपने देशभक्ति का इजहार किया है और जिसको कोई झुठला नहीं सकता. मेरे ओपोनेंट ने कहा कि भाई पहले गोल था हमारे पास कि फ्रीडम लेना है, तो फांसी पे चढ़ गए लोग. फांसी पे चढ़ना या जान दे देना, दैट इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया ऑफ पेट्रियटिज्म, राइट. किसी भी तरह से देश की उन्नति में पार्टिसिपेट करना वो एक क्राइटेरिया होता है देश की भक्ति का, देश स्वाभिमान का. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ओपनिंग कमेंट ने. अभी हमारे यूएस में कॉन्सुलेट को जरा सी परेशानी हुई थी और उसके लिए भी हमारा यूथ हमने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था उस बात को. सो दिस शोज दैट देयर इज सम प्राइड स्टिल, राइट. इट इज इंक्रीजिंग, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट इज जस्ट लाइक अ रिवर, राइट. समटाइम्स it dips but always it flows. Thank you. जी मिस्टर राजा, आपने सुना विरल सर को. सबसे पहले मैं आपके ओपनिंग कमेंट चाहूंगा
कि आपको किस क्षेत्र में लग रहा है कि हमारी देशभक्ति की भावना हमारे यूथ में कम हो रही है? जी, जैसा कि अब तक हमारे तीनों दोस्तों ने अपने अपने ओपनिंग कमेंट्स रखे और देशभक्ति को, पेट्रियोटिज्म को उन्होंने डिफाइन किया कि धर्म, जाति और बाकी सारी भावनाओं से परे एक भावना होती है अपनी मिट्टी से प्यार की और मिट्टी के लिए कुछ कर गुजरने की, जिसे हम अपनी माँ भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो सही है। दूसरे, देशभक्ति देश की उन्नति में किसी भी तरीके के योगदान में हम देख सकते हैं, परंतु आज हम देखते हैं जी राजा भी कंटिन्यू। जी, यहाँ पर ज्यादातर जो लोग कार्य कर रहे हैं वो कुछ स्वार्थ से निहित हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, देश का भला हो रहा है या नहीं। काफी सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनमें देश का शायद नुकसान हो सकता है, पर्यावरण का नुकसान हो सकता है, लेकिन वहां पर एक बड़ा जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ये फायदा नहीं, वो देश का नुकसान नहीं देखेगा। वो अगर देखता है कि मेरा फायदा है तो उससे देश को अगर नुकसान भी हो रहा है तो उस योजना को वो आगे बढ़ा देता है। और बाकी सारी काफी सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो अभी सारे पत्ते मैं खोलना पसंद नहीं करूंगा। जिस तरीके से आगे ये बात बढ़ती जाएगी तो हम उस पर एक एक मुद्दा उठाएंगे कि किस तरीके से डिक्रीज हो रही है। जी, ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर द ओपनिंग कमेंट। नाउ अभी चंद्रशेखर जी और सभी पैनलिस्ट, डिबेट इज ओपन अप नाउ। You can cut straight away each other point whenever you want. Now let us start with Bala Nagendran. Yeah. Bala, what points you want to cut their points? They are saying that yes. patriotism, people are selfish. Yeah. Patriotism is itself a self-centered one. You cannot be a unilateral when you have patriotism. When someone is taunting your soil, you must be a patriot. You must be self-centered. You must be selfish. Patriotism provides this. Patriotism talks all about what you are, what your country. I believe, though I couldn't understand the Hindi to the fullest, there is a difference between Desh Bhakti and Desh Abhiman. Patriotism, what they have said is nationalism. Nationalism is an inclination that inundated with bloodshed. But patriotism is not an inclination. Patriotism is a functional process, is a lifespan. Patriotism. Well, let me explain for you what they said in Hindi. They simply said only one thing in the bottom line, if I tell you, that people are not doing the patriotism. People are just selfish. They are more possessive to their caste and creed and their religion. People are thinking about the religion and the caste creed, not to the patriotism. That's where, even if you talk about religionism, there is a difference between talking about religionism, there is a difference between talking about nationalism, there is a difference between talking about patriotism coupled with religionism. There is a difference between saying that I am a Hindu, I am an Indian Hindu. Hindu, if you talk about Hindu or Muslim, that's a religionism. If you talk about I am an Indian Hindu, I am an Indian Muslim, as Dr. Abdul Kalam has said, when he has been called by NASA to work under their what is the umbrella, he has said, I am an Indian Muslim, I want to be in India. And if you see in the democratic process, lately we have been witnessing high turnaround in voting. Why it is happening? Without patriotism? Are the youths who are turning out to vote, are they coming without patriotism? This is what my question. Yeah. See, okay, Mr. Raja, yes. Hello. See, patriotism comes in the mind of youth. देशभक्ति, देशाभिमान, वो देशाभिमान के इन फ्रंट ऑफ देशाभिमान एवरी कैस्टिज्म, रिलीजम सब वो ये हो जाएगा, सब हो जाएगा। मेन इंटरेस्ट देशाभिमान बढ़ने से हमारा देश में भ्रष्टाचार, ये क्या कि अनवांटेड थिंग्स कम हो जाएगा। तो पहले वो रीजनलिज्म, क्या रिलीजन, कास्ट, वो सभी छोड़ना चाहिए सब। पहले बात ये हमारा देशाभिमान बढ़ना, वो बढ़ने से हमारा देश में अभिवृद्धि जल्दी हो जाएगा। हाँ जी सर जी, मैं
राजा जी मैं भी एक मिनट हाँ कर दूं। हाँ राजा जी, मैं आपको बताता हूँ। चंद्रशेखर जी बाला नगेंद्र कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारे जो युवा हैं उनमें अगर देशभक्ति की भावना नहीं है तो फिर वो वोट डालने क्यों जा रहे हैं इतनी भारी मात्रा में। वो बोल रहे हैं, बिरल सर बोल रहे हैं कि ये हमारे जो युवा हैं उनमें देशभक्ति की भावना है, तभी तो वो सड़कों पर उतरे थे। जन लोकपाल बिल को लेके, जन कृपया का जो कांड हुआ तो उसमें सभी जागरूक है, देशभक्ति के कारण तो सड़कों पर आए और वोट डालने गए। क्या तर्क है आपका इसको काटने के लिए? सर मैं ये इसका तर्क दूंगा कि हाई वोटर टर्नआउट आप देखेंगे कि कई अलग अलग वजहों से होता है, और इसी इलेक्शन की अगर बात करें तो कई जगह पे लो वोटर टर्नआउट भी हुआ है, और दूसरे हाई वोटर टर्नआउट में भी आप ये देखेंगे कि वहां पर कितने सारे पैंतरे राजनीतिक दलों को भी लगाने पड़ते हैं। कई जगह पर अगर रिक्शा न प्रोवाइड की जाए तो लोग वोट डालने न जाएं। तो ये पेट्रियोटिज्म है कि मुझे रिक्शा दो तब मैं वोट करने जाऊंगा। यही यूथ है आज का कि वो फैसिलिटी चाहता है। और वोट डालने का एक बात, वोट डालने का ये चीज आए तो हमारा देशाभिमान बढ़ने से केवल नेशनल पार्टी को हमें वोट डालते हैं, क्योंकि हमारा देश एक होना चाहिए। रीजनल पार्टी को हमें वोट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि रीजनल पार्टी को वोट दे तो हमारा देश एक यूनिटी नहीं होता। No, sorry sir, sorry for the interruption. Because see, regional parties are only, they are playing games. National parties are playing games, sir. No, but You see, our what point is not whether the regional parties are good or the national parties are good. We are concerned with whether the youth is patriotic or not, and 100% the youth is patriotic. The best example of youth patriotism is me and Bala. Yeah. We both are young and we are opposing you people in front of 100,000 people online. The thing, patriotism in all sections, as our sir rightly mentioned, there are people who are talking about caste, religion, everything. Sir, it is politicized. There is a difference between patriotism and politicization of patriotism. Patriotism in paper, patriotism in practice. If I don't mention my caste, I won't get jobs, sir, in India. That is due to politicization. Patriotism is just one example. Somebody told that we are running after the money, and youth is running after the money, and they are selfish enough to, go abroad and so not. In 1999, when we experimented with our nuclear bombs, and there was a worldwide sanction on India, economical sanction. Then Prime Minister Mr. Bajpayee appealed the NRIs to give the money whatever they have, and they gave us in that amount, they gave us in that proportion that we didn't have to look at the World Bank, the Monetary Fund or US aid. And then after that, US was compelled to lift the sanction. This is the patriotism at its level best. Whether it is youth or old age, patriotism cannot be measured by age factor. It is there in 2 years boy, it can be in 99-year octogenarian. India is the largest growing economy, and US had many interests. So it was not just the reason you mentioned. There were many reasons which compelled US to lift the ban. Thanks for accepting, sir. Many reasons that compelled US. What compelled US? Indian patriotism, isn't it? Sir, it is not Indian patriotism. It is the trade benefit. Whatever it is, trade benefit also based on patriotism. Trade benefit of US. Trade benefit of India, sir. India is the world's largest market. India want many. And US want Indian market. Trade benefit of US that US was losing the market. So it wanted to gain the market back. Yes, if they don't lift the sanction, they wouldn't have got, right? So right, that was US had that problem. So वो उनकी मजबूरी थी. Yeah, there also we showed like. मजबूर किया ना, हमारे youth ने मजबूर किया.
हमारे यूथ ने नहीं मजबूर किया, हमारी साइज ने मजबूर किया, हमारे मार्केट ने मजबूर किया, हमारे यूथ ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा वहाँ पर। अच्छा ठीक है, चलो तीर और नहीं मारा। मैं बोलता हूँ, आपने पैसे की बात की तो चलिए बहुत अच्छी बात है, पैसे की बात की। हमारे यूथ वाले जो पैसा कमाते हैं और 31 मार्च से पहले बैंक जाते हैं और क्या पूछते हैं कि मुझे टैक्स सेविंग स्कीम्स दे दो अच्छी वाली, जिसमें लंबे समय तक पैसा अंदर रहे। टैक्स से आप सब जानते हैं कि देश का विकास टैक्स से होता है। टैक्स सेविंग या टैक्स बचाना, किसी तरीके से टैक्स अवॉइड करने की स्कीम जब मांगते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कोई पेट्रियोटिज्म नहीं, हम सबसे पहले अपना देखते हैं। Okay, very good point, sir. In the point of view of libertarianism, I am a libertarian. I will put it in this way. I have earned my money. I have served. I have done best to my country. If you had saved your scam monies, if you had the scams that you have indulged in, you would have saved the country without putting any tax into the people. How can you draw my money that I earned by serving to the nation, and again you are asking me to pay the tax? Taxation is wrong in my view. As a libertarian, I condemn taxationism. 2 मिनट के लिए राजा जी, Taxes are required everywhere. So, but it is not the point of debate today. Otherwise, I would have gone. That would have been far better because. Let me put some question. Let me put some question to Bala and Biral sir. Before you put the question, I would like to refute Mr. Raja. राजा जी, यूएस की मजबूरी थी और उसने अपने ट्रेड्स के लिए अपने हिंदुस्तान पे से बैन उठा ली है। यूएस काफी सारी वजह थी सर उसमें, वो अभी उसमें हम बहस में नहीं जा सकते, वो टॉपिक नहीं है हमारा। हाँ, अगर आप मुझे छोड़ दें 2 मिनट के लिए हाँ बोलने, बोलिए। तो मैं जरा आपको बताऊं, सबसे बड़ा फैक्टर हमारा यूथ है यूएस के बैन उठाने में। अब तो वही तो मेरा क्वेश्चन है बिरल सर, हमने अमेरिका को बना दिया, अपने को डुबा दिया, क्या हमारा यूथ? आप ये बताएं बिरल सर, आई वांट टू नो दिस। इंडियन पीपल पैसों के खातिर एक तरफ मिस्टर अब्दुल कलाम थे जिनको बाहर नौकरी मिली, उन्होंने छोड़ दी। जहाँ हमारा यूथ है इंडिया में उनको 50,000 मिलता है तो वो नहीं सेटिस्फाइड है, फॉरेन में जाके वहाँ डॉक्टर बन रहे हैं, वहाँ अमेरिका जैसे देशों को अपलिफ्ट कर रहे हैं और इंडिया को डुबो रहे हैं। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कहाँ देशभक्ति है? हमारे जो यूथ है वो आज भी जो भी कंट्री का नेता आता है हमें पाकिस्तान भेजने की बात करता है। हिंदू मुस्लिम यहाँ पर अभी भी लड़ रहे हैं, कहाँ पर है देशभक्ति की भावना? सब अपना कास्टिज्म, बिल्कुल सही पॉइंट, राइटली पॉइंट सेड बाय द चंद्रशेखर। हर बंदा अपनी स्टेटहुड के पीछे है, अपनी लैंग्वेज के पीछे है। देश कहाँ है? This is where Desh. This is where India. You cannot. You cannot. But dividing the people. Yeah, no. Unity in diversity, sir. Talk about Kargil war. Talk about Gujarat earthquake. Who helped? We Indians lifted. Sir, it has been fought by the army, not by the India. Oh, sir. आपके सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ एक ही लाइन में। आपने ये एलिगेशन किया कि इंडियन यूथ यूएस को टॉप बना रही है और इंडिया को खत्म कर रही है, राइट? डुबो रहे हैं। हाँ, डुबो रहे हैं। वी आर सिंकिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। हाँ, और ये भी कहा आपने कि भाई ये कास्टिज्म के नाम पे लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई साहब, आजम खान ने बोला भारत माता डैन है, क्या ये पेट्रोटिज्म है? गिरिराज सिंह ने कहा जो मोदी को वोट नहीं देगा वो उसको पाकिस्तान फेंक देंगे, क्या ये देशभक्ति है? चलिए हमारे जो आप ही बोल लीजिए, बाद में मैं बोलता हूँ। हेलो, आप इसका हेलो, यस सर, मैं एक बात तो इंक्लूड करता हूँ। हेलो, ये हमारा बोलिए हेलो, बोलिए सुन रहे हैं। यस ये हमारा यूथ को अभी भी ये छोटे से बचपन से ये देशाभिमान बढ़ना चाहिए। Then our youth can develop देशाभिमान when they grow. Otherwise, all of a sudden youth को देशाभिमान ये करने होता नहीं, इंक्लूड करने होता नहीं। बचपन से हमारा देश में क्या हमारे देश में ये बताइए, टेक्स्ट बुक में ये देशाभिमान का लिखा है, और कोई चीज में हमें नहीं देख सकते।
ठीक है, हमारे बचपन से पहले तो सबसे पहले तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक चेंज करनी चाहिए, पर्टिकुलरली हिस्ट्री। इंडिया की कोई भी स्टेट बुक ले लो, हिस्ट्री देखो, गुलाम मानस से बड़ी बड़ी है। वी आर इनकलकेटिंग द रॉन्ग मैसेजेस। हम पूरे दिन अपने बच्चे को यही सिखा रहे हैं कि हमने इनकी गुलामी की। मेरा बच्चा मुझसे पूछता है, क्या सर हमने किसी पे राज नहीं किया? हाँ, हमने पहले से वी आर डेंटिंग द माइंडसेट ओवर अवर चाइल्ड। सर आप एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री भूल रहे हैं मेरे ख्याल से। सबसे पहले हमें इंडिया का टेक्स्ट बुक चेंज करना है। दूसरी बात सर, भारत के इतिहास में एंशिएंट इंडिया का इतिहास भी पढ़ाया जाता है, वो आप भूल रहे हैं मुझे लग रहा है। आप अभी उठा और के इतिहास आप अभी ये दिखाने की चीज नहीं है कि क्या नहीं हुआ, उसमें फैक्ट चीजें हैं। अगर आप अंग्रेजों ने आपके ऊपर राज किया है और आप बोलेंगे भाई हमारे ऊपर राज अंग्रेजों ने नहीं किया, तो इसका कोई मतलब थोड़ी है। इतिहास तो इतिहास है, जो भूतकाल में हो गया उसको आप बदल नहीं सकते हैं। आप क्यों टेक्स्ट बुक चेंज करना चाहते हैं इतिहास की? मैं टेक्स्ट बुक चेंज करना सर आप मेरे सवाल का जवाब ये कहेंगे गांधी जी पैदा ही नहीं हुए थे, गांधी जी नाम का कोई आदमी था ही नहीं जिसने कोई स्ट्रगल किया ही नहीं। क्या आप लिखेंगे? Yes, Bala, I have given some question and I would like to know. Lately, I example. Yeah. I am quoting that 66 Kashmiri student. Okay. When the Pakistan won the match, Okay. the anti-slogan What against slogan? India Murdabad, Pakistan Jindabad. It was the slogan. They have said जीतेगा भाई जीतेगा, Pakistan जीतेगा. This is what the media said. Sir, that's what they have put as sedition. Can you bring that? Danish, we are living in a democratic country. Unity in diversity, sir. So what democracy means democracy means in a democratic country. They haven't said Kashmir. But democracy means we can do anything. You should be anti-Indian. Democracy teach you to be anti-Indian. If you say democracy does not allow for being anti country. If you cheer Pakistan, you cannot say that democracy means anything. Does it sound anti-Indian if you cheer Pakistan? What an ideology is that? If you have to, if you feel that you must distract. You are provocating the fascist ideology. You know, you are living in India, so you have to support India. This is not patriotism. You are compelling the people. What is patriotism, sir? What they have said. That's why you are unable to maintain the sedition charge. Why you haven't put the sedition charge in the court? Why court release them people? You put them a sedition charge, you know? Have been sent back to the अभी ये डिस्कस करना चाहिए। ये नहीं तो कम हुआ तो बढ़ने का क्या क्या काम हमें लेना चाहिए। नहीं, लेकिन चंद्रशेखर जी कम कहाँ हुआ? ये वो तो मान ही नहीं रहे, वो तो बोल रहे हैं कि बढ़ रहा है, आप बोल रहे हैं कम हुआ है। सर जी मैं एक और बात बताता हूँ। कैसा बढ़ हमें बढ़ रहा है तो हमारा देश इतना साल होना था क्या ये बढ़े या अभिवृद्धि होने के लिए? देखो जापान या रशिया क्या अमेरिका कितना जल्दी बढ़ गया, अभिवृद्धि हो गया। हमारा देश इतना साल होना था, हमारा देश अभिमान घट गया। तो चल भाई चंद्रशेखर जी एक मिनट बात करते, एक मैटर को समझिए। ये एक डिबेट है और इसमें आप बोल रहे हैं कि पेट्रोटिज्म कम हो रहा है और वो बोल रहे हैं कि देशभक्ति की भावना जो देश अभिमान है वो बढ़ रहा है। आप हमें ये बताइए चंद्रशेखर जी कहाँ कहाँ कम हो रहा है तो हमें पता लगे कि देश। चलिए दानिश जी मैं आपको एक बात बताता हूँ। सैटरडे संडे बहुत सारी जगह पे हमारे यहाँ ऑफिस में छुट्टियां होती हैं, वीकेंड्स होते हैं। और अगर इस बार का कैलेंडर आप उठाएं, हेलो जी, तो 15 अगस्त जो है वो फ्राइडे को आ रहा है। तो अभी बालानगेंद्रन सर फिर वही कहेंगे, लेकिन ये बताइए ये 15, 16 और 17 का प्लान लोग क्या बनाएंगे? सबसे पहली योजना बनेगी कि हम बाहर कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले आदमी ये नहीं सोचेगा कि हम देशभक्ति का कोई कार्यक्रम अटेंड करें, कहीं झंडा फहराएं, ये नहीं होगा। सबसे पहले होगा कि किस पार्क में जा सकते हैं, किस रिजॉर्ट में जा सकते हैं और 3 दिन वहाँ देश को भूल के पूरी तरीके से एंजॉय करें। ये होता है, ये प्लानिंग बनेगी। देश का बहुत लोग करना वो पेट्रोटिज्म है, राइट? हेलो बहुत युवकों को हेलो हमारे देश का ये इंफॉर्मेशन कौन प्रेसिडेंट है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, वो सभी ये स्मॉल इंफॉर्मेशन भी वो सुनता नहीं, समझता नहीं। वो that is not, sir. Even older people have a doubt. Who is the prime minister now?
नो युवकों का ये आकर्षण यूथ का तो छोड़ दीजिए, हमारे जो स्टार्स हैं वो उनको पूछा गया एक स्टार को कि प्रेसिडेंट कौन है देश का, उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान। If that is the case, it is a fault of you elder teachers. हमारा देश का अभिवृद्धि किसका हाथ में है? युवा शक्ति में। और युवा शक्ति हमारे देश का अभिवृद्धि के साथ ये देशाभिमान बढ़ना चाहिए, और ओल्ड पीपल का नहीं। हमें हमारे देश का क्या क्या उन्नति अधिकारी सभी ओल्ड पीपल है, इसलिए हमारे देश का ये उन्नति होता नहीं। हमारा देश का पदवी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सभी युवा शक्ति बनाना। If the students are wrong, that is the mistake of the teacher, isn't it, sir? The senior person. देखिए चंद्रशेखर जी और राजा जी, आप ये बताइए, अगर Yeah, of course. Actually, I want to answer to the questions put forth by Mahajan sir, but I will answer it later as he want to raise question now. No, you continue. I will ask. Sir, give me couple of minutes because. Sure, sir. You can. I am eager to retort Mr. Raja ji. आप बताइए. Raja ji is today. He has taken Revital pills and he is in energetic mood. But very good point have been by him. Yeah. राजा जी बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए. Congratulations for that. सर मैं 15 मिनट की तैयारी है सर, क्या करेंगे? अरे कोई दिक्कत नहीं है यार. No, very good. Bala, let me explain what Mr. Raja said. He has prepared. Mr. Viral, he said when there is a holiday on Independence Day, people do not, our youth do not think to attend the ceremony rather than making the plan where should we go for the picnic. If it is the case, India is a country of any social plan. Sir, India is a country of freedom, sir. If it is youth are doing that, who created that? Why you people haven't able to create? Look, listen this. If we go and attend the 15-minute ceremony, what will happen? We will symbolically display that we are patriotic, right? You can do other things also, no? Some social causes. Listen me. Let me complete. Yes. But if we plan and go out to a destination and we will spend 3 days there, we will strengthen our economy thrice more than what we have done. What we have done in last 15 minutes, standing there in the queue if we stand there, the elders you are not contributing to economy. You are contributing to the profits of that resort. But is it a debate elder versus youth, Bala? Yeah, patriotism in youth is reducing. That's what they are saying. If the youth are wrong, how can we say it is because of elders? The country is not. But you are saying you are competing. Just a symbolic gesture that we are going. चंद्रशेखर से एक बात पूछनी है. चंद्रशेखर जी, आप हमें ये कि किन फील्ड में देशभक्ति कम है चंद्रशेखर जी? देश का अभिमान ये कम हो रहा है क्योंकि हमारा देश का युवा शक्ति क्या हमारा देश का अभिवृद्धि कार्य में नहीं जोड़ सकते उसका हाथ. वो क्या तभी ये फिल्म और मूवी और क्या के वो रिक्रिएशन उसके सब जना जोड़ते हैं, अभिवृद्धि के बारे में नहीं जोड़ते. अभिवृद्धि के किसका अभिवृद्धि? हमारे देश का अभिवृद्धि होना चाहिए, उसका बारे में सब युवकों का हाथ जोड़ना चाहिए. In Deshbhakti, sorry for the interruption, sir. In Deshbhakti, you are not talking something different, sir. Always you are talking only one personality. Father of our nation. What about Bhagat Singh, sir? What about Subhash Chandra Bose? The elders are wrong, sir. Is that what you are inculcating? Development. You are doing the youngster versus elders. That is not the debate. Yeah, if the youth Chandrasekhar is saying our youth is in the drugs. They are more eager to have the drugs. So what? And they are watching the movies. They are going to the picnics. Who cares about nation? How far patriotism is reduced, sir? In what way? If they are purchasing, profit is going to the country's economy. आप देखिए आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, किसी भी जगह पे
देश को बढ़ाने की जो जिम्मेदारियां ली जा सकती है, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में आज हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, और जो लिटरेट है अगर वो छुट्टी के दिनों में पढ़ाएं तो यहाँ पर वो एक अच्छा यूथ तैयार करेंगे, जो गरीब बच्चे उनको पढ़ाएंगे, मौका देंगे, तो हमारे हाथ मजबूत होंगे और हमारी युवा शक्ति और मजबूत बन के निकलेगी। तब जाके हमारे देश के विकास में और कुछ ज्यादा अच्छा योगदान होगा। वहाँ पर बहुत कम लोग हैं, यानी ये सामाजिक फैक्टर हो गया। आर्थिक फैक्टर में भी देखिए, आर्थिक फैक्टर में भी देख लीजिए कि पैसे काम करने की तरफ से जहाँ पे अच्छे ऑफर्स हैं तो वहाँ पर ज्यादातर लोग निकल जा रहे हैं। काफी कम लोग हैं जो एक बड़ी नौकरी, प्रॉफिट वाली नौकरी छोड़ करके देश के विकास के हिसाब से सोचेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए आर्थिक, सामाजिक या देश के हर पहलू में आप देखिए कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कमी आ रही है देशभक्ति में। नहीं, लेकिन जी ये बताइए कि जब भी देश जी राजा जी, मैंने आपको इकोनॉमिक का तो आंसर दे दिया था, जिसको आप मानने को तैयार नहीं थे। रिसोर्ट वाला घुसा दिया आपने, राइट। द यूथ, तो आप बताइए ना, आप 3 दिन क्या कर रहे हैं और किस तरीके से देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? अरे आप तो प्रॉफिट ज्यादा, अरे भाई जिसमें आप देश के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आप तो सोच रहे हैं कि यार वो स्लाइड कितनी मस्त है, वो पानी कितना मस्त है, वो जरा रेन उसमें डांस कर लें और उसके बाद जो पैसा है वो उसको आपने मालिक को दे दिया। जितना मैं किराया दूंगा रिसोर्ट का, जितना किराया दूंगा उसका 10% मेरे देश को जाएगा। हाँ, और पहला प्रॉफिट जो है वो आपके देश का नहीं है, पहला प्रॉफिट आपकी Actually, you are saying that we are celebrating in one day, but talk about Uttarakhand relief, sir. Who has gone? Youth or who? दूसरी बात सुन लीजिए। Talk about Gujarat earthquake. Who has gone? Talk about Kargil war. The lately हमारा विषय ये नहीं है कि देशभक्ति समाप्त हो गई। आप समझने में गलती कर रहे हैं। विषय ये है कि कम हो रही है, ये नहीं है कि समाप्त हो गई। ये तो देशभक्त तो है, देश में देशाभिमान है, तभी तो काम हो रहे हैं। ये थोड़ी किसी ने कहा कि काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनका प्रमाण राजा जी जब भी देशभक्ति की बात आती है, अभी आपने देखा जो निर्भया वाला एक बहुत ही इंसिडेंट हुआ, बहुत हॉरिफाइड इंसिडेंट, तो हमारा यूथ सबसे आगे था। जब जन लोकपाल बिल की बात हुई तो हमारा देश का यूथ सबसे आगे था। जब भी किसी देश में कोई लहर उठती है तो हमारा यूथ सबसे आगे होता है। तो कहाँ लगता है कि यूथ में देशभक्ति की भावना कम हो रही है? देखिए निर्भया कांड जो है, निर्भया कांड में हम मानते हैं कि यूथ आगे आया, लेकिन उसके अलावा अगर आप स्टडी करें तो ऐसे कई सारे कांड हैं जो होकर के रह गए और यूथ तक या तो पहुंचे ही नहीं, या यूथ तक पहुंचे भी तो यूथ ने कोई खास कार्रवाई नहीं की। वहां पर कहीं पर ऐसी घटनाएं हो गई और कुछ लोगों ने इस तरीके से चीजों को एक्टिवेट कर दिया तो वहां पे यूथ बढ़ गया। वरना बाकी आप अगर परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो ज्यादा घटनाओं में यूथ आगे नहीं बढ़ पाया है, या यूथ ने उसको केयर नहीं किया है। Without youth, the corrupt politician wouldn't have fallen at the feet of all of the citizens as of now during election campaign. Without youth, in Delhi wouldn't have witnessed the historic impact that you have seen in 2013. Without youth, you wouldn't have seen that you have been saved by the Pakistani terrorists from the line of control, who is killing them day in and day out, who are dying to save you. Without youth, you cannot stay and sleep with a safety measurement with the all-out plugged in and by killing mosquitoes if the youths are not sleeping and saving at your borders. How can you say youth population is reduced? Patriotism is reduced. First, patriotism in the form of what you believe. Can you define what is patriotism according to you? नहीं, वो तो आपने डिफाइन कर दिया ना, उसको दोबारा डिफाइन करके हम वक्त क्यों खराब करेंगे सर? Yeah, okay. I couldn't understand what you said. Bala Nagendran, what are you are going to trap the people by quoting the army. They are having the salary and they are doing the job. Oh, come on! You cannot. But come on, so. every country has the army. What are you saying? Where the youth is? When you listen about the terrorists, when you listen about the terrorists, you lock your door and sleep inside. Do you dare to stand out for the others? Without youth, how saved, sir? Where? Who saved? You are comparing. In army only youth is there. Yeah. No old people. Colonel is a youth.
The major is the youth. What are you talking about? Taking weapons and You are just trapping the people. You are trapping the people. Where is the patriotism? What do you do? सर आपने आर्मी का एग्जाम्पल दिया, तो इसी देश में जहाँ पर देश की रक्षा में जवान खड़े हैं, तो इसी देश में जब दंगे हो जाते हैं तो आमने सामने भी जवान ही खड़े हो जाते हैं। देश का नहीं सोचते हैं, वो तो अपनी मारकाट शुरू कर देते हैं। वहाँ वो देश को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि इज्जतें उछाल दी जाती हैं, जबकि पता है कि इससे हमारे देश का नाम खराब होगा, लेकिन तभी यूथ यही करता है। क्या ये देशभक्ति है? Don't you know that how many rape cases has been reported? How many domestic violence by the youth? Nobody is caring about the nation. Shall I put National Crime Record Bureau who said whether youth or elderly people? Shall I put? Yeah, you put it. Yes, you put it. 24,900. Yeah, I'm putting. The 5 members in the Nibia can how many older and how many youngsters? Okay, sir. How many youngster drugs are taking drugs? Okay. The border, who is passing the drugs to the other country, not youngster? Whoa. Yes, tell me. If you are saying youth are passing the drugs, if you are saying that youth are raping women, what about youth are saving the country? That's what I am talking about. You are talking about the army. You are talking about the. You are talking about the army. You are making a mountain from the mall. You are telling that army has no elder, only youngster. You are trying to reap a man. Tell me how many youngsters stood before the terrorists? How many? Can you define? All of them are youngsters, sir. Mr. Unni Krishnan, 27 years. He was an older person, right? The lately died Mukund 1 week ago. Died by the blockade. No Manmohan Singh, no Sharad Pawar, no Pranab Mukherjee at the age of 81 and save the country. If you say that 40-year-old are only youth because Rahul Gandhi is the chief of youth association, you are wrong. You see, yes, Mr. Raja, can you rebut them? Moderator sir, यहाँ पे aggressive हो चुके हैं. No. You cannot. You have to talk about army, patriotism, wherever you want. I will talk about economy as you right. देखिए सर, आज अगर आप देखें, पंजाब के कई शहरों में आज ऐसी स्थिति है कि यूथ मर रहा है और नौजवान स्त्रियां जो है वो विधवा हो रही हैं, और वो सिर्फ इस वजह से कि यूथ अपनी देशभक्ति, देश के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपने सिर्फ मजे के बारे में सोच रहा है, ड्रग्स ले रहा है और उसको कैंसर या कई सारी बीमारियां ग्रसित कर रही हैं और उसका खात्मा हो रहा है, एंड हो रहा है। यही देशभक्ति है। सिस्टम कौन चला रहा है? Remember when Mr. Rajiv Gandhi was Prime Minister, he was young and energetic. So he brought a lot of changes in our country because of youth mind. So older people, if a Prime Minister or President become older people, no, the changes will take place slow and steady. If younger people become Prime Minister and President, our देश का ये changes बहुत जल्दी हो सकता है। Yeah, that's what. Thanks a lot. What you are saying. That is why, please vote the youth people. Then our country will become fast and growth. Yes, that's what the process. That process will take always time. If you have seen what has happened in the democratic process, and we are going to witness, you all welcome to witness the special transmission up to date on May 16th. That even the same moderator is going to host the show. He is going to see the impact of youth, patriotism of youth. Wow, how youth have created a dramatic impact. एक या दो दिन पेट्रियोटिज्म के लिए नहीं होते, एक या 2 घंटे पेट्रियोटिज्म डिफाइन नहीं करता है। पेट्रियोटिज्म जो है आपके साथ डेली चलता है। Patriotism is a functional thinking, sir. It will stay in you forever. सर, ये हमेशा की चीज है, यही मैं भी कह रहा हूँ। ये सिर्फ एक कांड के लिए खड़े हो जाने से नहीं है, आपको देश के किसी मामले के लिए हमेशा उपस्थित रहना चाहिए। एक चुनाव में अपने गुस्से के लिए वोट दे दिया कि भाई मेरा काम नहीं हुआ, और दूसरे चुनाव में गायब हो गए क्योंकि आपका काम हो गया है, तो ये पेट्रियोटिज्म नहीं है, ये तो क्रोध है। क्रोध कि आपका काम नहीं हुआ था, तब आपने एक विशिष्ट पार्टी या नेता के विरुद्ध वोट दे दिया था। जब तक आप में क्रोध नहीं होगा, आपकी देश भावना नहीं आएगी। भगत सिंह में भी क्रोध था, चंद्रशेखर आजाद में भी क्रोध था, जवाहरलाल नेहरू में भी क्रोध था। सर, वो प्रोडक्टिव वाला था ना। यहाँ सिर्फ सेल्फ स्टैंडर्ड है। के लिए आता है, अगर क्रोध नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर पाते। अभी आप डिबेट कर रहे हैं क्योंकि आप में क्रोध है,
अगर आप में क्रोध नहीं होता तो आप डिबेट नहीं कर पाते। Actually, क्रोध में भी क्या बोलते हैं प्रकार आएंगे ना सर। आप सेल्फ सेंटर्ड लेकर अगर अपने बारे में सोचते हैं और ये मेरा फायदा नहीं हुआ इसलिए मैंने वोट कर दिया, ये वाला बात नहीं है ना। आप वोट करें और आप अगर देश के मसले के लिए वोट करें। आप देखिए ज्यादातर रीजनल या छोटे मोटे मुद्दों पर वोट होता है कई जगह पर, आप देखेंगे। तो सुन लो मेरी बात। अगर मैं मेरे मामले को लेकर एक चीज में वोट देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 पीपल वोटेड फॉर वन इशू, वो इशू तो नेशन का है ना। कोई मेरा घर का इशू लेके तो मैं चुनाव में नहीं गया ना। हाँ, अच्छा चलिए, आपको जॉब नहीं मिला तो तब तक आपने वोट किया उस टाइम पे। मेरी बीबी मेरे को मार रही है, ये इशू लेके तो मैं वो चुनाव में वो वोट डालने नहीं जाऊंगा ना। ऑल द इलेक्शन इश्यूज आर नेशनल इश्यूज, वेदर इट इज तेलंगाना, वेदर इट इज सुसाइड ऑफ द फार्मर्स, वेदर इट इज लोक जनपद, ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड विद नेशन। रिलेटेड विद, लेकिन जब आपका इशू अगर सॉल्व हो जाता है, जैसे आपकी जॉब, आपको जॉब नहीं मिली है। Not about the youth. Now listen things. You know, because we learn more from listening rather than speaking, right? आपने ये कहा कि यूथ ये मर रहा है क्योंकि ड्रग्स ले रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिस्टम कौन चला रहा है आपका? सारे बूढ़े बागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं। हाँ, क्यों सिस्टम नहीं लाते ड्रग्स को रोकने का? क्यों शराब पे बैन नहीं लगाते? हाँ, who are doing that? Who is controlling the system? The old people, right? आपने कहा कि लोग जहाँ पे फायदा होता है वहाँ पे नौकरी छोड़ के वो नौकरी करने चले जाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल 3 जॉब छोड़ के आया है, और अभी आप ये कहोगे कि उसका तो पर्सनल फायदा है। पर्सनल फायदे के लिए तो अब किसी को भी एक्यूज कर रहे हो। हाँ, हमारे देखिए, आप एक दो उदाहरण मत दीजिए। मसला एक दो उदाहरणों का नहीं है। मसला ये है कि देश के लेवल पर देशभक्ति का स्तर घट रहा है या बढ़ रहा है। इसमें एक या दो नौजवानों की बात नहीं है। इसमें सिर्फ विरल त्रिवेदी या मोहम्मद रजा या दानिश महाजन ऐसी बात नहीं है। इसमें सारे युवाओं की बात आ रही है। हर छोटी चीज, हर बड़ी चीज के लिए कहीं ना कहीं से तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना। इनिशिएटिव लेने की बात थोड़ी। अभी फिलहाल हमारा मुद्दा ये नहीं कि हमें इनिशिएटिव क्या लेना है। हमारा ये मुद्दा है कि फिलहाल की स्थिति क्या है, क्या घटी हुई है, क्या बढ़ी हुई है। को भी सुन लेते हैं थोड़ा सा। अप्रिशिएट करना पड़ेगा ना कि ये लोग कर रहे हैं। हाँ, चंद्रशेखर जी बोलिए। विरल सर, हम चंद्रशेखर जी को सुन ले थोड़ा सा। हेलो जी जी। ये हमारा ये युवा शक्ति को बढ़ाने के, ये पेट्रियटिज्म बढ़ाने के लिए हमारा घर से शुरू होना चाहिए। घर से सब हर एक दिन उसको एक चीज बनाता थिंग्स, उसको दिखा को क्या क्या देखना, क्या क्या ये सुनना, ये सभी पेरेंट्स वो टीच करना चाहिए, वो बचपन से करना। इसलिए हमारा ये सब ये जाति का अभिमान, वो रिलीजन का अभिमान सब दूर होकर देशाभिमान बढ़ जाता है। ये काम हमारे देश में अभी जरूर होना चाहिए। जी जी, थैंक यू सो मच। नाउ इट्स द टाइम टू that's the time to I have to wind up the debate, but before that we want the closing comment, and here are some listeners are saying that you please provide the opportunity to Bala to clear his points along with the closing comments. So Bala, please go ahead. Thanks a lot for giving me, and thanks to the listeners who are asking that. First and foremost to your questions that you put in. As our Chandrasekhar sir rightly pointed out just now, it should begin from Ghar, from our house. So you have to talk about your language. As you said, why people are divided by language. Even though we are divided, we are united by the Indianization. This is the great example. Viral sir from West, I am from South, you are from North. We all are talking. This is what the great example for the unity in diversity that we have been talking. And the second thing that you have put, where is that Desh Bhakti among the youth if they are going and earning profit?
let me tell you, there is a good term in economy called current account deficit, in which due to the elderly people's brilliant scams, due to the top brass old people's corrupt mentality, India has lost its gold consumption, its currency value, 2 cases. Usually current account deficit calculated by 3, right? Return on investment in abroad, and the remittances that you gain from abroad. In remittances you gain from abroad, only you are high. You have the plus value. In both the rest of the cases, you have minus value. So even if Indians are working abroad, they are working with patriotism. That's why they are sending their dollars back, so that you can convert it to your currency, you can save your country. Imagine, without them, India wouldn't step in. And my views, let me plunge myself into views. First, patriotism. Patriotism has a multifarious term. Though we call in English it's a patriotism, in Hindi we have said Deshabhiman or Deshbhakti. Patriotism in a socialist way, patriotism in a democratic way, patriotism in a Marxist way. There are many, but patriotism in a common view, every view, even socialism, communism, everything that says your country is first. We are, even if I am from Tamil Nadu, I am first an Indian, then only I am a Tamilian. This is what we have to keep in mind. This is what there in the youth. If you see so many incidents, if youth are not there, you wouldn't have find this high return. No one has answered to my question how youth have come to vote, or else I couldn't have got their point what they have said about that. If the youth were not there, you wouldn't have got this higher return of votes. And another thing, patriotism is not only about hoisting flags, saluting flags, and talking about national leaders. It's all about earning money as well. Patriotism is self-centered. Patriotism will provide you something that you need to take care of your own. This is my India. This is my nation. If anybody would talk against this, I will kill them so bad. This is what patriotism. Thank you so much, Balagandan. Thank you so much. I know you have the magnet tank to pull everyone in your favor by the magical words you use. Now let's move to the Mr. Raja. Mr. Raja, what is your closing comment? ओके मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा मुद्दा ये था कि घट रही है या बढ़ रही है, ये नहीं था कि समाप्त हो गई है वगैरह। ये सबसे पहले हमको मुद्दे को समझ लेना जरूरी है। इसके वजह से अगर कोई डॉलर्स भेज रहे हैं तो कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के लिए भेज रहे हैं डॉलर्स, और कुछ लोग देश के लिए वाकई काम कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि काम नहीं हो रहा है, हम ये कहते हैं कि भावना कम हो रही है पहले से जी। और दूसरे इन्होंने मुद्दा उठाया कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद अपने राज्य के वगैरह। लेकिन हम देखते हैं कि कई जगहों पर आज भी हमारा राज्य, हमारा कोई भाग पहले आता है और हमारा देश उसके बाद आता है। किसी राज्य का विभाजन हो जाना, इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं कि जहां पर वो पहले अपने राज्य का मुद्दा उठाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा भाग है, तब वो भारत का ये नहीं विचार नहीं करते। तो कई जगहों पर आप देखेंगे कि देशभक्ति की जगह पे किसी विशेष भाषा भाग यहाँ पर लोग ज्यादा जोर देने लगते हैं। और तीसरे उन्होंने वोटर टर्नआउट की भी बात की थी। तो वोटर टर्नआउट अगर वाकई सिर्फ ये लोगों ने मतलब बिल्कुल जोश में आकर किया है तो मानने की बात है, मगर अगर ये जोश की बात है तो आप दूसरे से ऑटो नहीं मांगेंगे, आप दूसरे से पार्टियों से खाना नहीं मांगेंगे, आप खुद जाएंगे अपने पैसे पर, अपने इस पे। लेकिन ये दुर्भाग्य से ये सारी चीजें हो रही हैं और हम देख रहे हैं, बाकी सारे मुद्दे हमने कहे हैं कि देशभक्ति कई जगहों पर युवाओं में कुछ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में अपना जो योगदान देना चाहिए या दे सकते हैं वो देने की भावना कम हुई है। सेल्फ सेंटर्ड होना अगर देश के लिए है तो बहुत बेहतर है, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड जब आदमी अपने लिए हो जाता है तो इसको आप देशभक्ति नहीं कहेंगे, ये तो अपनी खुद की भक्ति हुई। और ये कभी भी देशभक्ति का इसको आप ये नहीं पहना सकते। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चंद्रशेखर जी, देश के अभिमान के लिए क्या करना चाहिए और कैसे देश अभिमान को बढ़ाएं हम?
हमारा यूथ को अच्छे तरफ से शिक्षण मिलना, वो शिक्षण में भी देशाभिमान का एक एक अंश लगाना, खाना क्या है? यू को फॉर यूथ पीपल अच्छे जॉब मिलना, सबको जॉब मिलना, नहीं तो जॉब मिला नहीं तो लेकिन कैसे मिलना चंद्रशेखर जी, देते नहीं है वो ऊपर वाले, लड़ना पड़ता फिर मिलता सब कुछ, कौन देगा? नहीं, वो जॉब मिलना तो लड़ने का काम, ये टाइम नहीं मिलता उसको, तो इसलिए जॉब मिलना, अच्छे तरफ से एजुकेशन मिलना, बाद में जॉब मिलना, हमारे देश में जॉब मिलना, अच्छे तरफ से जॉब मिला तो वो अच्छे तरफ से काम किया तो हमारा देश के लोगों के लिए हमारा अभिमान, देशाभिमान सबके मन में जगाता रहे। थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर, योर व्यूज, आपके जो विचार है चंद्रशेखर जी बहुत अच्छे हैं, और आपका एक्सपीरियंस झलक रहा है जो हमें आप इतनी शिक्षाएं दे रहे हैं। हम रेडियो उड़ान की टीम हार्दिक दिल से आपका स्वागत करती है और धन्यवाद करती है। बीरज सर, आपके क्लोजिंग कमेंट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। 2 मिनट जी बीरज सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच दानिश जी। देशभक्ति की भावना का कोई पैमाना नहीं होता कि कहीं पे बढ़ रही है कहीं पे घट रही है। देशभक्ति की भावना ही होती है, राइट। ये कहना कि बच्चे ये पार्टी शार्टी कर रहे हैं या बच्चे यहाँ पे घूमने जा रहे हैं वो जा रहे हैं, ये डिस्प्ले नहीं करता कि हमारे में कम हो रही है। देशभक्ति की भावना तब दिखाई देती है जब हमारा देश कहीं पे संकट में है। देशभक्ति की भावना तब दिखाई देती है जब देश को जरूरत है, और आज तक भारत के युवा ने कभी भी देश के नाम पे पीछे हटने का काम नहीं किया। जब भी देश को जरूरत पड़ी है, युवा शक्ति आगे बढ़ी है, आगे बढ़ के उसने नेतृत्व लिया है। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे वो आज का जो माहौल है जहाँ पे करप्शन के खिलाफ, देश वायलेंस के खिलाफ और कोई भी मुद्दा हो। सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे कि बाहर जा रहा है यूथ, बाहर क्यों जा रहा है? क्योंकि आपके देश में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि यूथ अपनी शक्ति को यहाँ पे वो कन्वर्ट कर सके, फुल्ली यूटिलाइज कर सके। तो पहले यूथ को ब्लेम करने से पहले यूथ को कैपेसिटी जो है वो फुल्ली यूटिलाइज करने का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, और बाद में देखिए कि ये यूथ आपको फिर से सोने की चिड़िया बना देगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। इस डिबेट में मैं आप सभी से विदा लूं और आप सभी को विदा दूं। मैं यहाँ पर स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ मिस्टर मोहम्मद सैयद राजा का। नवीन जी ने आना था, जिन कारणों से वो नहीं आ सके, कारण उन्होंने कोई बताया नहीं, लेकिन वो तो हम विनम्रता से रिक्वेस्ट करते हैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को कि आप आएं। अगर आपका कोई, आप नहीं आ सकते, कोई परेशानी है तो हमें जरूर बताएं, लेकिन हमारे साथ मजाक मत करें। पार्टिसिपेशन पहले बोलकर एंड टाइम पे मना कर दे बिना रीजन के। और यहाँ मोहम्मद सैयद राजा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रेडियो उड़ान की टीम से। 15 मिनट पहले इन्हें इमरजेंसी बताया गया और ये हर समय रेडियो उड़ान किसी भी प्रोग्राम में हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके अलावा चंद्रशेखर जी, आप पहली बार आए, आपको पता नहीं कैसा लगा, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप यू एंजॉय इट। Thank you so much. Viral sir is one of our permanent panelists and always very innovative and insightful views. And we are really thankful from the heart. And Bala Nagendra, of course, is contributing in every way to Radio Udaan. I thank. This is our radio. Thankful. It's our, it's our old radio. So, Yes, radio. Yeah. So everybody is a must Thank of you. this radio. Thank you for giving opportunity. Thank you. Yeah, thank you. सभी वोट डालें, एंजॉय करें। और 16 तारीख को चुनावी घमासान, 16 तारीख को सभी इनवाइटेड हैं। एक जन रेडियो उड़ान पर इनवाइटेड है अपने एरियाज की चुनावी रिपोर्ट के साथ। आप सभी आएंगे अपनी रिपोर्ट्स लेके, एक्सपर्ट से सवाल भी पूछ सकते हैं। 7 से 11 शाम को रेडियो उड़ान पर हम मिलेंगे, और रेडियो उड़ान पर बाकी प्रोग्रामों का सिलसिला यूं ही बरकरार है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सर।